Hello students, welcome to the second part of the video of chapter 4, that is states of matter. I'm Divya Singh, your science teacher. Today we are going to discuss more about this chapter. Today we'll study about the changing states of matter. Okay? So the matter, it can change from one state to another by heating or by cooling. हम किसी भी मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसे हीट कर कर या उसे कूल कर कर. Okay, and it can be also changed by changing the pressure also. Okay, and the best example is water. Like for example, आप एक आइस ट्रे लीजिए, ठीक है, अपने फ्रीज़र से आप एक आइस ट्रे लीजिए एंड जस्ट put it into sunlight. What you will see, जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी. It will change into what? It will change into water. Then put that water back into the freezer. What will happen? जो water होगा वो आइस में convert हो जाएगा. सो इससे क्या हुआ कि आपका जो लिक्विड फॉर्म है वो किस में चेंज हो गया? सॉलिड फॉर्म में. ओके, सो दिस चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ये आपके तीनों फॉर्म में पॉसिबल है, इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, now we'll study one by one each. The first one is melting. Okay, so what do you mean by melting? Melting is a change of solid substance into the liquid state. Is known as what? It is known as melting. So as you can see, solid जो है वो liquid में change हो गया because of what? Because of हीट. अब वाई डज दिस हैपन? ये इस वजह से होता है बिकॉज जो आइस में जो पार्टिकल्स होते हैं, आइस इज़ व्हाट? आइस क्या है? आइस इज सॉलिड. तो जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं जब हम उसे हीट करते हैं तो जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या उसके जो पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत ही टाइटली पैक होते हैं वो अचानक से बहुत वाइब्रेट करने लगते हैं बिकॉज ऑफ द हीट. इसकी वजह से व्हाट हैपन कि उनका जो एक पैटर्न होता है, जो वो टाइटली पैक्ड होते हैं वो बहुत ही दूर हो जाते हैं. दे स्टार्ट मूविंग और मूव करने लगते हैं फ्रीली अराउंड ईच अदर एंड दस द सॉलिड आइस मेल्ट इन टू फॉर्म लिक्विड. क्योंकि लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं. अंडरस्टूड? So the example of melting is conversion of ice that is solid to water on heating is known as what? It is known as melting. Okay, so as you can see यहाँ पर the ice is changes into liquid. Now the next is vaporization. What do you mean by vaporization? Vaporization is the change of liquid substance into its gaseous form. When the liquid change into vapor because of heat, vapor means gas, तो what will happen? Vaporization will happen. Okay, और ये क्यों होता है? Because liquid के molecules क्या होते हैं? दे आर जब उन्हें हीट मिलती है तो जो थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है वो बहुत तेज़ी से, बहुत ही एक्सट्रीम मूवमेंट होने लगती है ऑन हीटिंग और वो और दूर चले जाते हैं एक दूसरे से. एंड देन व्हाट हैपन? दूर किस में रहते हैं? इन गैस. ओके, व्हाट आर द एग्जाम्पल? एज यू कैन सी यहाँ पर लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मीन्स वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है. Okay, so what do you mean by condensation? Condensation is the change of gas into liquid form. Okay, so as you can see the vapor, that is the gas, उसको हम जब cool करेंगे तो it will change into what? It will change into liquid. And why does this happen? Because cool करने पे जो cool molecules होंगे it becomes slow और वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे and as a result जो water droplets होंगे they will appear on the glass surface. इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो लाइक आपने कभी देखा होगा कि आप कभी पानी, ठंडा पानी जब आप ग्लास में डालते हैं तो उस ग्लास के चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. तो व्हाट इट इज़ नोन एज? इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन. ओके, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन? कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर टू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग. जब वाटर वेपर जो है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो कूल करने पे तो इट इज़ नोन एज व्हाट? इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन. Now the next one is freezing. What do you mean by freezing? It's very easy. Freezing में क्या होता है? The change of liquid substance into the solid state. It is known as what? It is known as freezing. So as you can see, liquid change into solid because of cooling. And why does this happen? Because the particles of the water they loses heat and their movement on because of that जो particles हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और वो tightly packed हो जाएंगे. Thus it takes the form of a ice. Okay. So what are the examples of
freezing, the formation of ice on cooling water that is liquid, as you can see यहाँ पर ये water है, इसको हम cool करेंगे तो it will change into what? It will change into ice. Okay class, so now we'll study about expansion and contraction. What do you mean by expansion? Expansion मतलब बढ़ना and contraction मतलब कम होना. Okay, so in expansion, when we heat a substance, its particle move away from each other and occupy more space. जब भी हम किसी पार्टिकल को हीट करते हैं या सब्सटेंस को हीट करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, एज वी हैव स्टडीड, वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और उसकी वजह से व्हाट हैपन कि उसका जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है और बिकॉज ऑफ दैट इट ऑक्यूपाई more space. And what do you mean by contraction? When we cool a substance, its particles come closer to each other and occupy less space. कोई particle जब cool होता है तो उसके particles पास पास आ जाते हैं और वो कम space occupy करते हैं. Understood? So as you can see, there is a table over here in which it's explained about expansion in solids, then expansion in liquids, and then expansion in gases. तो gases में भी अगर आप जैसे for example in gases, अगर आप कोई inflated balloon रखेंगे सन में फॉर सम टाइम्स व्हाट विल हैपन, वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा बिकॉज जो एयर है उसके अंदर वो एक्सपैंड होगी ऑन टेकिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स. जो बलून है जब उसे हीट मिलेगी, जब हम उसे सनलाइट में रखेंगे तो उसका साइज़ क्या होगा? एक्सपैंड कर जाएगा. ओके, so here as you can see, this is a contraction in solid, this is contraction in liquid, and this is contraction in gas. So इसमें भी the same example, अगर आप कोई inflated balloon को जिसको आपने उसके माउथ से टाई कर लिया है, उसको हम टाई कर देंगे at the mouth of the bottle. आपने कोई बॉटल लिया, उस पर बलून को टाई कर दिया उसके माउथ पे और बॉटल को आप किसी आइस कोल्ड वाटर में रखेंगे. व्हाट विल हैपन, तो जो बलून है वो अपनी साइज़ में क्या होगा? वो और छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी एयर होगी बलून के अंदर की वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ कूलिंग. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन में हीट करने पर क्या होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं उनका एरिया बढ़ जाता है एंड इन कॉन्ट्रैक्शन द साइज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ कूलिंग. ओके, now we'll study about the reversible and irreversible change. What do you mean by reversible change? Reversible change is that change which you can change. Okay, reversible change जिसे आप वापस से उसके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. Okay, and irreversible change is what? Which cannot be changed back again. Okay, so as you can see, there is a chocolate. आपने चॉकलेट को मेल्ट किया तो आप उसे दोबारा चॉकलेट का बार बना सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ रिवर्सिबल चेंज. एंड हियर इट इज़ द एग. आपने किसी एग को ब्रेक किया तो आप उसे वापस उस शेल में नहीं रख सकते. तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ irreversible change. Understood? So here, what is reversible change? A reversible change is a change that can be undone or reverse. Reversible change वो change होता है जिसे हम वापस से reverse कर सकते हैं. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी चॉकलेट, अगर आप उसे हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, कूल करेंगे तो वो वापस से सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस ऑरेंज जूस, व्हेन द ऑरेंज जूस इट कैन बी फ्रोजन टू फॉर्म अ सॉलिड आइसी पोल, व्हेन इट मेल्ट्स इट बिकम्स लिक्विड अगेन. ओके, now there are some properties of reversible change. Reversible change is also called physical change. A reversible change can change the way a substance looks or feel and then it can change back to its original appearance again. चॉकलेट है, आपने उसे मेल्ट किया तो वो पूरी पिघल जाती है, वो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो लिक्विड में हो जाती है, लेकिन अगर आप उसे दोबारा वो करेंगे तो वापस से वो सॉलिड में हो जाएगी. तो रिवर्सिबल में आप दोबारा से किसी चीज़ को उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, द चेंज में अफेक्ट इट्स साइज, शेप और फॉर्म बट अ न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड. रिवर्सिबल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसी में आपके कन्वर्जन होगा. उसका या तो साइज कम हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, बट द न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड. अंडरस्टूड? What is irreversible change? An irreversible change is a permanent change that cannot be undone. Okay, irreversible change एक permanent change होता है जिसे हम दोबारा
उसके किसी भी उसके पिछले या उसके पहले फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग अ केक, आप कोई केक बनाते हैं, आप वापस से केक को उसके सारे मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, या फॉर एग्जाम्पल फ्राइंग एन एग, आपने कोई एग को तोड़ा, उसे फ्राई किया, तो आप उसे वापस उस एग के शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेपर, इफ़ यू बर्न अ पेपर इट विल चेंज इन टू एश एंड स्मोक, तो वो ऐश और स्मोक दोबारा पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो व्हाट इट इज़ ऑल इज इरिवर्सिबल चेंज। ओके, so what is an irreversible change? Irreversible change is a chemical reaction. Okay, and reversible change is what? वो एक physical reaction होता है. Okay, in irreversible change it always changes into a new material. ओके, इरिवर्सिबल चेंज में हमेशा एक नया मटेरियल फॉर्म होता है, रिवर्सिबल चेंज में नया मटेरियल फॉर्म नहीं होता है। ओके, द न्यू मटेरियल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। जो न्यू मटेरियल होता है वो ओरिजिनल वाले मटेरियल से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। कभी कभी द न्यू मटेरियल इज़ वेरी यूजफुल एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट। ओके, and sometimes microorganisms such as bacteria and yeast are also used to create the irreversible change. For example, हम मिल्क लेते हैं, ठीक है, मिल्क में हमने बैक्टीरिया या हम जैसे दही, वी मेक कर्ड एट होम। ओके, तो अगर आप दूध में दही डाल देंगे तो जो मिल्क है वो किस में चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज इनटू कर्ड। ओके, तो इट विल चेंज इनटू व्हाट? इट विल चेंज इनटू कर्ड, लेकिन कर्ड को आप वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस और दीज आर द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल एंड irreversible changes. Okay, so this is all we have in this chapter, that is your states of matter. I hope you have understood each and everything. In case you have any doubt or in case you have any questions, you can tell me or you can ask me, and I have tried to explain you everything. So thank you so much, class.